السلام علیکم ناظرین برکئی خان تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیجی پہاڑی کے دمن میں پہنچ گیا تھا۔ اسے قاجی باشندے فرار ہوتے دکھائی دیے تو وہ یہ سمجھا کہ شاید منگول سپاہیوں کی آمد سے وہ خوفزدہ ہو کر میدان چھوڑ گئے ہیں۔ اسے اب جینانی دستے کا بھی انتظار تھا جو کافی قریب دکھائی دے رہا تھا۔ فوناجو خان اور اس کے باپ کو پہاڑی سے نیچے آتا دیکھ کر برکئی خان نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ موٹے فوناجو خان کے کندھے پر کچھ دکھائی دے رہا تھا جسے برکئی خان شناخت نہ کر پایا۔ وہ کبھی فوناجو خان پر نگاہ ڈالتا تو کبھی جینانی سپاہیوں کی جانب۔ تھوڑی دیر میں فوناجو خان اپنے باپ کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ اس کے باپ نے برکئی خان کو سامنے پا کر تیزی سے زمین پر جھک کر تعظیم پیش کی۔ فوناجو خان نے اپنے باپ کی تقلید کرنا چاہیے مگر برکئی خان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ وہ اس کے کندھے پر لدے انسانی جسم کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کسے اٹھا رکھا ہے اور اوپر کیا ہو رہا تھا؟ برکئی خان نے سوال کیا۔ کان زادے میں بتاتا ہوں، بوڑھا منگول آگے بڑھ کر بولا۔ میرا یہ بیٹا تھوڑا سا بے وقوف ہے۔ صبح اس نے خبر دی کہ ایک اجنبی پہاڑی پر بے ہوش پڑا ہے۔ میں اسے چھوڑ کر شکار کیے ہوئے ریچھ کو لے آیا ہوں تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں اس کے ہمراہ فیجی پہاڑ پر چلا آیا کہ اس اجنبی کو ساتھ لے کر بستی میں پہنچو، مگر یہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہ قاجی باشندوں سے نبردازماں ہے۔ ہم نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے قریب پہنچنے سے پہلے ہی قاجی باشندوں نے اسے زخمی کر ڈالا۔ جانے کیوں قاضی اسے لے جانے کی بجائے ہماری جانب متوجہ ہو گئے اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ بس جادوانی آسمان کا کرم تھا کہ جان بچ گئی۔ اس اجنبی نے بر وقت قاجی سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قاجی لوگ اپنے سردار کی موت دیکھ کر فرار ہو گئے۔ زندہ ہے کیا؟ ہاں، نبض دیکھی ہے میں نے، چل رہی ہے۔ کچھ پتہ چلا کہ کون ہے؟ نہیں، میں پوچھنے ہی والا تھا کہ یہ بے ہوش ہو گیا۔ ذرا اس کا چہرہ تو دکھاؤ۔ بوڑھے منگول نے فوناجو خان کو اشارہ کیا۔ فوناجو خان نے آہستگی سے اجنبی کو کندھے سے اتار کر زمین پر لٹا دیا۔ اس کے کپڑے خون سے سرخ ہو رہے تھے اور گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ فوناجو خان نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ برکئی خان کی جانب کیا۔ متی الدین کا چہرہ دیکھتے ہی برکئی خان کا پورا جسم جیسے زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس پر کپ کپی سی طاری ہونے لگی۔ وہ گھوڑے سے پھسلتا ہوا تیزی سے نیچے اتر آیا۔ وہ دوست جس کی تلاش میں اس نے بلاد اردو زرعی کے سارے ویرانے چھان مارے تھے، وہ اس کے سامنے زمین میں خون میں تر بتر پڑا تھا۔ میرا بھائی، میرا دوست، برکئی خان کے منہ سے بمشکل نکلا۔ وہ اس کا سر اپنی گود میں لیے دیوانہ وار اسے چومے جا رہا تھا۔ منگول سپاہی تعجب سے اپنے سالار کی حرکات دیکھ رہے تھے۔ فوناجو خان اور اس کے باپ کے چہرے کے تاثرات بھی ان سے مختلف نہ تھے۔ اسی لمحے جینانی دستے کا سالار جون زیف اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ منگول سپاہی اپنے سالار برکئی خان کی بے ساختہ حرکات کی جانب متوجہ تھے۔ جینانی سپاہیوں کی چاروں جانب موجودگی بھانپ کر چوکنے ہو گئے۔ جینانی دستے نے منگولوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ناظرین، ایک بڑے خیمے میں 30 کے قریب لوگ موجود تھے۔ ان سب کے چہروں پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ یہ سب بحری ممالک تھے جنہیں آج سلطان توران شاہ نے ان کے عہدوں سے معزول کر دیا تھا۔ وہ اب اعلیٰ عہدیداروں کی بجائے عام سپاہی بن چکے تھے۔ انہیں ان کے اعلیٰ خیموں میں سے نکال کر عام سپاہ کے خیموں میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ان میں سے اکثر پر غم و غصے کی کیفیت طاری تھی۔ انہی میں بیبرس بھی تھا۔ وہ نجم الدین ایوب کے عہد میں سلطانی دستے کا امیر مقرر تھا۔ توران شاہ نے اسے بھی معزول کر دیا تھا۔ یہاں موجود شخصیات میں فارس الدین اکتئی، احمد طلیہ کنیسز، علم الدین جینی، علی چولاک احمد قزوینی اور عبداللہ کاف نمایاں تھے۔ یہ لوگ سب کا دور میں اہم عہدوں پر فائز تھے۔ ان کے علاوہ دیگر لوگ بھی اعلیٰ عہدیدار تھے مگر ان کی اہمیت صرف مخصوص علاقوں تک محدود تھی۔ سلطان توران شاہ کے حکم نے ان کے دل میں نفرت بھر دی تھی۔ یوں چپ بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ علی چولاک بولا۔ اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ایک امیر بے بسی کے عالم میں بولا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ فارس الدین اکتئی گھمبیر لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر سب چونک پڑے۔ مجھے آپ سب لوگوں کی حمایت درکار ہے۔ میں جو سوچ رہا ہوں اس کی کامیابی رازداری اور مکمل اتحاد کی متقاضی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے مناصب پر دوبارہ فائز ہونے کے خواہش مند ہوں گے۔
तुम खोल कर बताओ, हमारी फिक्र ना करो, हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, हमारी मंजिल भी एक ही है, जो होना था वो तो हो ही चुका है, अब अगर ये नाव भी डूबेगी तो सबका एक ही अंजाम होगा। अहमद चौलाक जल्दी से बोला। फारिसुद्दीन अख्तरी की निगाहें दूसरे लोगों की जानिब उड़ गईं। वो सब उसका साथ देने पर पूरी तरह मादा दिखाई दे रहे थे। तुम सब लोग याद रखो कि मेरी मनसूबाबंदी नाकामी का शिकार हुई तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए एक बार फिर सोच लो। अख्तरी तुम बुझारतें बुझवाए जाओगे या कुछ मुंह से भी फूटोगे? अब्दुल्ला का मुंह बनाकर बोला। तो हमें पहले ही खौफजदा करने पर तुला है कि अगर कुछ करना भी हो तो हम पहले ही खौफ का शिकार हो जाएं, ताकि वक्त पड़ने पर हमारे हाथ पैर फूल जाएं। अहमद कज़वीनी हंसता हुआ बोला, बात मजाक में मत उड़ाओ। फारिसुद्दीन अख्तरी बदस्तूर संजीदगी से बोला, मैं तो रानशाह को राह से हटाने की मनसूबाबंदी कर रहा हूँ और यह काम कोई मजाक नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया अख्तरी? इल्मुद्दीन जैनी बेख्तियारी के आला में उठ खड़ा हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बात तहम्मुल से सुनो और फिर फैसला करो, क्या तुम सब लोग मेरा साथ दे सकते हो या नहीं? अख्तरी, बेबरस ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम इस वक्त एक नाजुक सूरत हाल से दो चार हैं। हमारे सामने सलेबी लश्कर मौजूद है जो हमें हर कीमत पर मिटाने के दर पे है। इस सिलसिले में पहले सुल्तान नजमुद्दीन अयूब की मौत को काफ़ी दिन तक मख्फी रखा गया था कि कहीं इस्लामी लश्कर बददिली का शिकार न हो जाए। अगर इन हालात में सुल्तान तौरान शाह के साथ भी कोई ऐसा नागहानी वाक़या रूनुमा हुआ तो इसके नतीजे क्या निकल सकते हैं? मैंने सब पहलुओं पर अच्छी तरह गौर कर लिया है। तुम सलेबी लश्कर की फिक्र न करो, हमारा हर मनसूबा सलेबी लश्कर की सरकोबी के बाद ही अमल में आएगा। मैं इस बात को फरामोश नहीं कर सकता कि जब तक हमारी ज़मीन हमारे कब्ज़े में है तब तक ही हमारा ओहदा और मनसब बाकी है। सलेबी लश्कर पर कल ऐसा खौफनाक हमला किया जाएगा कि वो मैदान छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अगर सलेबी लश्कर का मामला निबट जाए तो इसके बाद मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ, बेबरस ने जवाब दिया। इसके बाद फारिसुद्दीन अख्तरी ने अपना मनसूबा उनके सामने रख दिया। वो लोग फारिसुद्दीन अख्तरी के मनसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करते रहे। गुफ्तगू के आखिर में फारिसुद्दीन अख्तरी ने मुस्कराते हुए जब यह इंकशाफ किया कि इस तमाम मनसूबा साजी में रईसुल असाकिर जशन अकीर की रजामंदी भी शामिल है, तो वहाँ मौजूद सब लोगों के चेहरों पर हैरत व मसरत छाने लगी। नाजरीन, बरकई खान जनानी दस्ते की आमद पर उठा। उसने फनाजो खान के बाप को करीब बुलाया। करीब आने पर बरकई खान ने मतीउद्दीन को उसके हवाले किया और हिदायत दी कि वह उसे घोड़े पर लाद कर तेज रफ्तारी से बस्ती में ले जाए और इसकी मरहम पट्टी का बंदोबस्त किया जाए। बरकई खान ने उसे वाज़े लफ्ज़ों में बता दिया कि इस अजनबी की जान हर कीमत पर बचानी है क्योंकि वो उसके लिए बड़ा अहम है। मतीउद्दीन के बेहोश जिस्म को घोड़े पर लाद कर जो ही बूढ़ा मंगोल रवाना होने लगा तो जॉन जीफ ने उसे रोक दिया। यहाँ से कोई शख्स इतनी देर तक वापस नहीं लौट सकता जब तक मुझे ये मालूम ना हो जाए कि मंगोलों को जुर्रत कैसे हुई कि वो हमारे इलाके में बिला इजाज़त दन दनाते फिरें। जिनानी, होश के नाखुन लो और तमीज़ के दायरे में रहकर बात कर। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ उर्दू ज़री के कान आज़म के छोटे भाई बरकई खान मौजूद हैं। एक सिपाही आपे से बाहर होता हुआ बोला, कान का भाई हो या किसी गरीब का, मुझे इससे कोई गरज नहीं, मुझे सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहिए। जॉन जीफ उखड़े हुए लहजे में बोला, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, हम सब यही हैं। शख्स जख्मी है, काफ़ी खून बह चुका है, इसे तिबी मदद की फौरी ज़रूरत है, इसे जाने दो, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। मेरा नाम बरकई खान है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बेवकूफ़ी की बातें मत करो और ये भी मत भूलो कि तुम इस वक्त मंगोलों की सरजमीन पर खड़े हो। मैं चाहूँ तो तुम्हारे घोड़ों के नीचे से इसी वक्त यह ज़मीन खींच ली जाएगी। बरकई खान ने सर्द लहजे में उसे मुतनब्बे किया, खानज़ादे, ऐसी बातें करना बंद करो और सीधी तरह से मेरी बात का जवाब दो, दूसरी सूरत में मैं अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म दे दूंगा। जॉन जीफ सख्त लहजे में बोला, ज़रा पीछे मुड़कर देखो। बरकई खान ने इत्मीनान से उसकी तवज्जो मंगोल सिपा की जानिब मबजूल कराई जो कि जरगामी कबीले से बरकई खान का ताकुब करते हुए पहुंच चुकी थी और अब जिनानी सिपाहियों को अपने हिसार में ले रही थी। जॉन जीफ यह देखकर परेशान सा हो गया।
जॉन जीफ, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, इस जख्मी को रवाना होने दो, मैं अभी यहीं मौजूद हूँ। बरकई खान ने धीमे लहजे में कहा। ठीक है, उसे जाने दो। जॉन जीफ ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। बूढ़ा मंगोल 3 सिपाहियों के साथ मतीउद्दीन को घोड़े पर लादे वहां से जरगामी बस्ती की जानब रवाना हो गया। उसे जाता देख कर बरकई खान ने जोश लगाई और अपने घोड़े पर सवार हो गया। वो घोड़े को बढ़ाते हुए जॉन जीफ के मुकाबला खड़ा हुआ। जेनानी अमीर, बरकई खान सर्द लहजे में गोया हुआ, आज मुझे एक ऐसी खुशी नसीब हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। शायद यही वजह है कि तुम्हारा सर अभी तक धड़ पर मौजूद है। मैं अपने सिपाहियों के साथ वापस जा रहा हूँ। अगर तुमने कोई शरारत करने की कोशिश की तो मैं सिर्फ एक बार जान बख्शता हूँ, दूसरी बार मेरी तलवार बात करती है। मैं यहाँ तुमसे मुकाबला करने नहीं आया हूँ। मेरी आमद का मकसद वही जख्मी शख्स था, उसकी मुझे एक अरसा से तलाश थी। समझ गए तुम? कानज़ादे, तुम्हारे इस खूंखार लहजे से मैं खौफजदा होने वाला नहीं। बेशक मेरे सिपाहियों की तादाद थोड़ी सही है, मगर इनकी जुर्रत मंगोलों ने अभी देखी नहीं। जॉन जीव बिगड़ कर बोला। मेरा ख्याल है कि तुम वाकई अपनी जान गिनवाने पर तुले हो। बरकई खान ने कहा। मैं बहादुर जिनानी हूँ, जान की परवाह बुज़दिल मंगोलों को होती होगी। जॉन जीव तंजा लहजे में बोला। बरकई खान उसकी बात पर महज मुस्करा कर रह गया। जनानी सिपाहियों, बरकई खान बुलंद आवाज में बोला, मेरा मकसद तुम लोगों से उलझना नहीं है। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि तुम इस वक्त मंगोलों की ज़मीन पर खड़े हो। मैंने तुम्हारे अमीर को वापस लौटने का मशवरा दिया है, मगर वो जानबूझकर तुम लोगों को हलाकत में डालने पर तुला है। तुम अपने अकब में देख सकते हो कि मंगोल सिपाही कितनी तादाद में हैं और कैसे चाको चौबंद खड़े हैं। मैं यहाँ खून खराबा नहीं चाहता। मैं तुम्हारे अमीर को तनहा मुकाबले की दावत दे रहा हूँ। वो अपनी मर्दानगी का जिस कदर मुजाहरा कर सकता है कर ले, ताकि उसके दिल में कोई हसरत बाकी ना रहे। अगर तुम लोगों में से किसी ने उसकी मदद करना चाहिए तो वो अपने अंजाम से वाकिफ रहे। जिनानी सिपाही खुद को मंगोलों के निर्गय में देखकर परेशान हो रहे थे। जब उन्होंने बरकई खान की बात सुनी तो लम्हा भर के लिए हैरत में मुब्तला हो गए कि मंगोलों की सफ़ा की इस कदर नरमी में कैसे बदल गई है। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मेरे सिपाहियों को मेरे खिलाफ भड़काने के इर्तिकाब में तुम्हारी सज़ा मौत मुकर्रर कर दी गई है। कानज़ादे, सिपाहियों, अपने अमीर के हुक्म की तामील करो और मंगोलों पर टूट पड़ो। इनमें एक भी वापस जाने ना पाए। जॉन जीफ तेज लहजे में बोला। दूसरे लम्हे उसकी सीटी गुम होने लगी। तमाम सिपाही अपनी जगह साकत खड़े थे। वो हालात की नज़ाकत भांप चुके थे। तुम देख चुके हो कि कोई सिपाही खामखा मौत के मुंह में जाने को तैयार नहीं है। बेहतरी इसी में है कि अपने सिपा को लेकर वापस लौट जाओ, बरकई खान ने कहा। जॉन जीफ अपने हितक पर तलमला उठा। उसने तनहा ही मुकाबले पर आने का फैसला कर लिया। वो अपने नियम से तलवार निकालता हुआ घोड़े से नीचे उतर आया था। वो तलवार को हवा में लहराते हुए बरकई खान को मुकाबले पर उकसा रहा था। इससे पहले कि बरकई खान घोड़े से नीचे उतरता, फौनाजो खान अपनी तलवार बेनियम करते हुए आगे बढ़ा। कानज़ादे, अगर इस गुलाम को यह शर्फ बख्शा जाए तो मेहरबानी होगी। बरकई खान गोल मटोल नौजवान की जुर्रत पर मुस्कराया और उसे सर से इस बात का इशारा किया। जवान, मुझे उम्मीद है कि तुम मंगोलों की इज्जत बरकरार रखोगे। बरकई खान ने उसकी हिम्मत बंधाई। फौनाजो खान तलवार लहराता हुआ जॉन जीफ के मुकाबले पहुंच गया था। जॉन जीफ एक अदना मंगोल को मुकाबले में पाकर मुश्तइल हो गया। उसने पूरी कुव्वत से वार किया। फौनाजो खान अपने वजन का फ़ायदा उठाते हुए न सिर्फ उसे रोकने में बल्कि एक भारी भरकम घोंसे से जॉन जीफ के होश उड़ाने में भी कामयाब हो गया। जॉन जीफ एक घोंसे की ज़रब से उछलकर ज़मीन पर गिरा। बरकई खान फौनाजो खान की हाजिर दिमागी देखकर मुतासर हुआ। फौनाजो खान ने थोड़ी देर में जॉन जीफ की तलवार दूर फेंक कर उसे ठोकरों पर रख लिया था। जॉन जीफ के कपड़े तार तार हो चुके थे। जिस्म पर पड़ने वाली ज़रबों के नील वाज़े दिखाई दे रहे थे। जब वो बिल्कुल नढाल हो गया तो फौनाजो खान पीछे हट गया। उसी लम्हे एक तीर जॉन जीफ के सीने में पेवस्त हो गया। यह तीर किसी जनानी ने चलाया था। बरकई खान ने जनानी सिपाहियों को वापस लौटने का इशारा किया तो वो जॉन जीफ की लाश वहीं छोड़कर वापस रवाना हो गए। बरकई खान ने अपनी निगाह जॉन जीफ पर डाली और घोड़े को एड़ लगाकर जरगामी बस्ती का रुख किया। उसकी सिपा भी उसके ताक़ुब में रवाना हो गई। अलबत्ता मोटा फौनाजो खान पीछे रह गया था।
नाजरीन, अमीर बरकियारों को उसके खुफिया मुखबर ने चंद लम्हे पहले इतला दी थी कि मौजूल उमरा ने बड़े खेमे में कोई साजिश तैयार की है। वो ठीक तरह से उनकी बातें नहीं सुन पाया। अलबत्ता उनकी गुफ्तगू में सुल्तान तौरान शाह का नाम बार बार आता रहा था। अमीर बरकियारों के लिए यह एक नहायत अहम खबर थी। तौरान शाह की सुल्तानी उसके लिए नहायत ज़रूरी अमर बन चुकी थी। उसने अपनी अय्यारी से बहरी ममालिक को मजूल करवा कर न सिर्फ अपना मकसद पा लिया था, बल्कि उसकी तवक्को के मुताबिक उसे नैब सल्तनत का ओहदा भी हासिल हो चुका था। अब उस ओहदे की हिफाजत के लिए ज़रूरी था कि तमाम मौजूल उमरा को इस हद तक बेबस कर दिया जाए कि उनमें से कोई भी इस काबिल न रहे कि उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सके। उसने मौजूल उमरा की निगरानी के अहकाम जारी करते हुए उनकी हरकत व सकनात के बारे में पल पल की खबर का बंदोबस्त किया। उसने तौरान शाह तक यह खबर पहुंचाना ज़रूरी समझा। वो रात में सुल्तान तौरान शाह के शाही खेमे में जा धमका। तौरान शाह उसकी बेवक्त आमद पर झिंझिला गया। अब क्या बात हो गई है, बेवक्त ही मुंह उठाए चले आते हो? सुल्तान, अमीर बरकियारों ने हिजानी लहजे में कहा, अभी अभी मालूम हुआ है कि आपके मजूल करदा उमरा आपके खिलाफ कोई संगीन साजिश कर रहे हैं, इसलिए आपको बाखबर करने चला आया हूँ। तुम जब भी आते हो कोई मनहूस खबर साथ होती है। बोलो, कैसी साजिश पंप रही है? साजिश की तह तक पहुंचने के लिए मैंने उन उमरा की कड़ी निगरानी का हुक्म दे दिया है। मेरे ख्याल में वो जख्म खोरदा है, इसलिए आपको मनसब सुल्तानी से मजूल कराने के लिए कोई लया अमल तैयार कर रहे हैं। मेरे मनसब की बात छोड़ो, इसके बारे में मैंने इंतज़ाम कर लिया है। मुझे कोई मजूल नहीं कर सकता। बहरहाल अब आप आराम कीजिए, मैं इस ज़मन में मज़ीद खोज लगा कर आपको मतला करूँगा। अलबत्ता मेरी एक राय है। अमीर बरकियारों बोलते बोलते रुक गया। मैं सुन रहा हूँ। अगर इन मजूल उमरा को कल के मरके में हरावल दस्ते में भेज दिया जाए तो आप इनकी साजिशों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि दरबारी इशरत में मुब्तला ये लोग पहले ही हल्ले में साफ हो जाएंगे। तुम्हारी तजवीज़ माकूल है, मगर अभी तक इनके खिलाफ तुम कोई सबूत पेश नहीं कर सके कि वाकई किसी जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। सुल्तान मोहतरम को यह बात मालूम होना चाहिए कि मैं आपका नमखार हूँ और इन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं। मैं तो कल तक इन्हें जानता भी नहीं था। आपके साथ यहाँ आने पर ही इनकी हरकत व सकनात मालूम हुई जो मैंने आपके गोश गुजार दी। शायद तुम सच कहते हो। तौरान शाह गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद इनका बंदोबस्त कर लूँगा। अमीर बरकियारों ने मजीद कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से बाहर निकल आया। वो गुज़श्ता चंद दिनों में सुल्तान तौरान शाह में पैदा होने वाली एक नई तब्दीली भांप चुका था। वो करता वही सब कुछ था जो अमीर बरकियारों से तजवीज़ करता था, मगर अमीर बरकियारों के सामने वो हमेशा यही जाहिर करता था कि वो खुद फैसला करेगा। वो खुशी से सरशार अपने खेमे में चला आया। वो अपने तस्वुर की आंख से कल के मरके में उन तमाम मजूल उमरा की लाशें देख रहा था। वो अपनी कामयाबी पर इतना गाफिल था कि उसे महसूस ही ना हो सका कि उसके ताक़ुब में आने वाला बेबरस तौरान शाह से उसकी तमाम गुफ्तगू सुन चुका है और वो कल के मरके में की जाने वाली इस साजिश के बारे में अपने साथियों को आगाह करने जा रहा है। नाजरीन, मतीउद्दीन को जब होश आया तो उसने खुद को एक नर्म बिस्तर पर मौजूद पाया। वो देर तक आंखें झिपकता रहा। उसके जहन के पर्दों में फैजी पहाड़ पर पेश आने वाले वाक़यात घूमने लगे। वो समझ चुका था कि मंगोल कबीले ने उसकी मदद की है। नीचे की अंदरूनी बनावट पर गौर करने से उसे एहसास हुआ कि यह खेमा आम खेमों से मुख्तलिफ है। उसे बखूबी याद था कि अमूमन सरदारों के खेमे ही ऐसी सज धज लिए होते थे। उसने अपने जिस्म को हरकत देना चाहिए। दर्द की शदीद लहर ने उसके पूरे बदन को झंझोड़ कर रख दिया। हल्की सी करह उसके मुंह से निकली। उसकी दाईं टांग शदीद दुख रही थी। किसी ख्याल के तहत उसने अपनी टांग को टटोला। शायद उसे टांग काट दिए जाने का खदशा हुआ था। टांग अपनी जगह मौजूद थी, अलबत्ता उसे किसी ठोस शय के साथ सख्ती से बांध दिया गया था। उसका लिबास भी तब्दील किया जा चुका था। मतीउद्दीन एक लम्हे के लिए मंगोल कबीले की इतनी मेहरबानी पर हैरान रह गया। उसने दोबारा उठने की कोशिश की, मगर वो कामयाब न हो सका। टांग इस कदर सख्ती से बांधी गई थी कि उसे हिलाना जुलाना दो भर हो रहा था। मतीउद्दीन को अपने हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हुए। उसने नहीफ लहजे में आवाज़ दी, कोई है? मतीउद्दीन की आवाज़ बहर मौजूद शख्स के कान तक जा पहुंची। उसे बरकई खान ने खास तौर पर खेमे के बाहर तैनात किया था। वो जरगामी नहीं बल्कि मंगोल दस्ते का सिपाही था।
وہ خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے متی الدین کو ہوش میں دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے متحیر ہوا، کیونکہ طبیب نے کم از کم 24 گھنٹے سے پہلے تک اس کے ہوش میں نہ آنے کی پیش گوئی کر رکھی تھی، جبکہ وہ نصف دن گزرنے پر ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ محافظ سپاہی اس کی جانب مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ متی الدین نے اسے پانی مانگا۔ اس نے پہلو میں موجود ایک سراہی سے پانی چھوٹے سے کوزے میں بھرا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ متی الدین نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر پھر ناکام رہ گیا۔ محافظ سپاہی یہ دیکھ کر اس کے سرہانے کی جانب آ بیٹھا اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر اسے سہارا دے کر پانی پلانے لگا۔ متی الدین نے بمشکل تمام پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارے۔ نقاہت کا غلبہ ایسا شدید تھا کہ اتنی سی مشقت میں ہی وہ بری طرح ہانپنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کی سانسیں بحال ہوئیں۔ محافظ برتن رکھنے کے بعد دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم بتا سکتے ہو کہ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ یہ زرگامی قبیلہ ہے، محافظ نے مختصر جواب دیا۔ متی الدین سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر اس نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، تم جانتے ہو کہ سرائے شہر یہاں سے کتنی دور ہے؟ محافظ سپاہی اس کی بات سن کر مسکرانے لگا، بالکل، اگر میں نہیں جانوں گا تو کون جانے گا، میں سرائے کا ہی رہنے والا ہوں۔ اس کی بات سن کر متی الدین کو ایسے لگا جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ اس نے بے اختیار ہو کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر درد کے شدید جھٹکے نے اسے کرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ آرام سے لیٹے رہیے، طبیب کا کہنا ہے کہ آپ کو کچھ دن آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کا زخم کافی خراب ہو چکا تھا، اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو آپ کی جان جا سکتی تھی۔ سنو، تم ابھی کچھ دن یہیں ٹھہرنا، جب تک میں تندرست نہیں ہو جاتا تم سرائے مت لوٹنا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، میرا گھر بھی وہیں ہے۔ متی الدین بے-تابی سے بولا، میں اپنے قیام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں تو عام سپاہی ہوں، جب بھی مجھے حکم ملا سرائے روانہ ہو جاؤں گا۔ بہرحال آپ فکر مند نہ ہوں، میں اپنے سالار سے آپ کے بارے میں بات کروں گا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا، کیا تم یہاں کے مکین نہیں ہو؟ متی الدین تذبذب میں بولا، آپ کا اندازہ درست ہے، میں چند دن پہلے ہی ایک مہم کے سلسلے میں اپنے سالار کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ وہ بولا، تم اپنے سالار کو مجھ سے ضرور ملانا، میں خود اس سے بات کروں گا۔ متی الدین نے اسے ہدایت کی۔ سپاہی سر ہلانے لگا۔ اسی لمحے ایک چہکتی ہوئی آواز متی الدین کے کانوں میں پڑی، مجھ سے تم کیا بات کرو گے اناڑی عاشق؟ متی الدین یہ آواز سن کر بری طرح چونک پڑا۔ یہ وہ آواز تھی جو اس کی سماعت میں ایک عرصے سے محفوظ تھی اور جسے سننے کو اس کے کان ترس گئے تھے۔ وہ غیر شعوری طور پر کمر کے بل اڑتا چلا گیا۔ درد کا کوئی احساس تک اس کے بدن میں باقی نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بے چینی و بے قراری سے اس آواز کے مالک کو تلاش کر رہی تھیں۔ ناظرین، یکم محرم 648 ہجری کو منصورہ کے میدان میں گھمسان کا رن پڑا۔ صلیبی لشکر کی دفاعی حکمت عملی کو بھی ناکام بنا دیا گیا۔ بحری اور برجی ممالک نے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا۔ بیبرس اپنے دستے کے ہمراہ 2 دفعہ صلیبی لشکر کے قلعہ پر حملہ آور ہوا، مگر اسے قلعہ میں زیادہ اندر تک داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ بیبرس کے لیے یہ دن بڑی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ توران شاہ نے اس کے کئی ساتھیوں کو ہراول دستے میں بھیج دیا تھا۔ معزول امراء کے لیے جنگ لڑنا کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں ابھی تلوار چلانا بھی ڈھنگ سے نہیں آتا تھا۔ وہ حصول علم میں اس قدر مشغول رہے تھے کہ انہیں ابھی فنون حرب میں مہارت حاصل کرنے کا خیال بھی نہیں آیا۔ ان کی علمی صلاحیتوں نے انہیں اعلیٰ مناصب تک پہنچا دیا تھا۔ ایسے امراء کو فارس سختئی نے تجربہ کار سپاہیوں کے ساتھ شامل کر دیا تھا۔ وہ نہ صرف صلیبی لشکر کے دانت کھٹے کرنے میں مصروف رہے، بلکہ ان امراء کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نبھاتے رہے۔ امراء کی زیادہ تعداد بیبرس کے ساتھ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بیبرس کئی بار قلعہ پر حملہ آور ہونے کے باوجود پیچھے ہٹتا رہا۔ امیر برقیاروں کے رچائے ہوئے خوفناک کھیل کو بحری ممالک نے باہمی تعاون سے شام تک بری طرح ناکام بنا دیا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔